and a very warm welcome. So for today's Elder Hour, our India's first ever Elder Festival, we have a very special session planned, which is going to be extremely beneficial for all of you during this monsoon season. It is health that is the real wealth, not pieces of gold and silver. We all know how a healthy diet benefits our body and how an unhealthy diet can harm us. But as much as we want to make healthy food choices, it can be very hard to stick with a balanced diet when the comfort and ease of the less virtuous options are all around us. A healthy diet helps to protect against malnutrition in all its forms, as well as non-communicable diseases, including diabetes, heart disease, stroke, and cancer. So to talk about all this and give us a brief knowledge about what food one should avoid and what one must eat more of during the rainy season, we have none other than our very own Rashmi Nayal. So just to introduce you all to Rashmi, Rashmi Nayal has 12 years of experience to her credit with reputed institutes such as Narendra Mohan Hospital, Ghaziabad, Dabur India Limited, Vaishali, Sarvodaya Hospital and Research Center, Faridabad, VPS Rockland Hospital, Dwarka as HOD, and Healthians Healthcare Marketing Private Limited. Currently, she's working as a dietitian at Imoha Elder Care, and she has a master's degree in science, specializing in food and nutrition. She is a life member of the Indian Dietetics Association also. So with this, Rashmi, I welcome you to our Elder Hour program. And of course, looking forward to today's session with you. Your sessions have always been very insightful, very informative. And monsoon, as we in the midst of monsoon, as we can all see, wherein it's been pouring day in and day out, and we all have been stuck in a lot of traffic also because of that. And a lot of things I know when we talk about it, there are things which we've been hearing our elders talk कि इस time पे ये नहीं खाना है, बारिशों के season में ये नहीं खाना है. So इनके reasons क्या है and what best to eat during the season is something which is definitely going to help out everyone. So welcome once again and over to you, Rashmi. Thank you, ma'am. Thank you so much. नमस्ते, आई एम डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज हम बात करेंगे मॉनसून डाइट की। मॉनसून बारिश का सीज़न जैसे ही आता है, सावन का सीज़न जैसे ही आता है, हम सब के माइंड में पकोड़े, कचौड़ी, समोसे, घेवर, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मॉनसून को कैसे एंजॉय करें। बट मॉनसून में बहुत सारी डाइट रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती हैं, हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती हैं, तो हम कैसे उसको अपनी डाइट को अच्छा रख सकते हैं और क्या हेल्दी हम ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉनसून डाइट के ऊपर। बारिश सबको अच्छी लगती है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बारिश पसंद ना हो। हाँ, ट्रैफिक या उस वजह से हमें थोड़ा सा बारिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर मैं डाइट की बात करूँ या फिर गर्मियों के बाद जैसे ही वेदर चेंज होता है, बारिश का सीज़न आता है, तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों से हम परेशान हो गए होते हैं। तो थोड़ा-सा वेदर में चेंजेस होते हैं, मौसम ठंडा होता है, थोड़ा-सा चेंजेस होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे हमें अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि हम अपनी डाइट में क्या चेंजेस करें। अगर मैं बात करूँ मॉनसून सीजन की, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉनसून सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब ये सीजन आता है तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर इन सब चीज़ों के अगर हमें डाइट अच्छी लगती है या वेदर अच्छा लगता है, लेकिन बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन के चांसेस जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो इस वजह से हमारी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इफेक्टेड पड़ता है इससे, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, कोल्ड, कफ बहुत जल्दी हमें हो जाता है अगर एज़ कंपैरिजन टू बाकी सीज़न की अगर मैं बात करूँ। तो मॉनसून डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मॉनसून में क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ का हमें
खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉनसून डाइट के ऊपर बात करूँगी। हर सीज़न का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर मैं बात करूँ कि विंटर्स में हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऑरेंज का सीज़न होता है, ऐसे ही गर्मियों का टाइम आता है तो उस टाइम पे मैंगो खाना हमें बहुत अच्छा लगता है, आम का सीज़न आ जाता है और मार्केट में भी हमें चारों तरफ अलग-अलग तरीके के मैंगो, दशहरी, आपका बनारस का आम या इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। इसी तरह जैसे ही मॉनसून सीज़न आता है तो उसमें भी हमारे हमारे मन में पकोड़े, समोसे, कचौड़ी ये सब चीज़ें हमारे माइंड में सूजी का हलवा जैसे ही थोड़ी-सी बारिश हुई नहीं कि हमारे माइंड में ये सब चीज़ें आने लगती हैं कि आज बारिश हो रही है, चाय के साथ पकोड़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन आज ये खाने का मन कर रहा है। तो हम कैसे क्या चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अपनी एक पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉनसून डाइट की मैंने आपको आज बात करेंगे हम मॉनसून के बारे में। मैंने आपको बताया कि मॉनसून हमें अच्छा लगता है लेकिन बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी ये लेके आता है। हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमारा इफेक्ट पड़ता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हमें मॉनसून के टाइम पे हो जाती हैं। लेकिन मॉनसून पे हम क्या चीज़ ले सकते हैं? अगर मैं सीज़न की बात करूँ, सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि अगर हम सीजन के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं हमारा न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं। उसमें जो भी उसके पौष्टिक तत्व हैं वो हमें प्रॉपर मिलते हैं। अगर हम सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं लेते तो हमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। जिस जो डेफिशिएंसी हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है वो हमें उसी टाइम उसके बारे में पता नहीं चलता लेकिन धीरे-धीरे आने वाले टाइम में उसका असर हमारी बॉडी पे दिखने लगता है जैसे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बी12 की डेफिशिएंसी, हेयर फॉल होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बहुत सारी चीज़ें हमें उससे रिलेटेड हो जाती हैं। तो अगर मैं मॉनसून की बात करूँ कि मॉनसून की इस मौसम में हमें चटपटा खाने का, स्पाइसी फूड खाने का मन करता है, तो हमें अपनी डाइट में क्या-क्या चेंजेस करना चाहिए, किस तरीके से हम ले सकते हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे कि वेजिटेबल नॉर्मली हम सब जानते हैं कि हम सब बोलते हैं कि हरी सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो वेजिटेबल की अगर मैं बात करूँ तो इस सीज़न में, मॉनसून सीज़न में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है बारिश के टाइम पे अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें फंगस या छोटे-छोटे कीड़े होने के चांसेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इस टाइम पे हमें इन सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए, कुकुम्बर को अवॉइड करना चाहिए, हरी सब्जियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे जो सब्जियां हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि आपकी घिया, तोरी, कद्दू, टिंडा, ये वाली सब्जियां जो लाइट वेजिटेबल होती है, हल्की सब्जियां जिनका डाइजेशन भी हमारा अच्छे से कर पाएँ, जो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े जिन सब्जियों को खाने से डाइजेशन में, वो वेजिटेबल को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 2 मैं बात करूँ अनाज की यानी कि ग्रेन्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉनसून के टाइम पे हमें दलिया, रागी, राइस, मक्का, कुट्टू का आटा ये वाली चीज़ें रागी ये चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। गेहूँ की चपाती जो नॉर्मली हम तीनों टाइम खाते हैं, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। गेहूँ की चपाती हम दिन में 1 टाइम ले सकते हैं। तीनों टाइम अगर हम ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, गेहूँ जो होता है हमारा अगर हम उसकी चपाती लेते हैं तो वो डाइजेशन जो है वो स्लो करता है, धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है। तो उस वजह से हमें थोड़ा-सा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसीलिए मॉनसून टाइम पे तीनों टाइम पे गेहूँ की रोटी नहीं इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। एक टाइम पे आप गेहूँ की चपाती इंक्लूड करें, बाकी 2 टाइम पे आप राइस इंक्लूड कर सकते हैं, दलिया इंक्लूड कर सकते हैं, मक्के का आटा इंक्लूड कर सकते हैं, कुट्टू का आटा आप इंक्लूड कर सकते हैं, रागी की चपाती, बेसन की चपाती, मिस्सी रोटी या मल्टीग्रेन चपाती जो हम बोलते हैं, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें डाइजेशन में कम टाइम लेती हैं और ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका कि पल्सेस की मैं बात करूँ, अगर दालों की मैं बात करूँ, तो दालें जो होती हैं
वो इस टाइम पे अगर मॉनसून की मैं बात करूँ तो मॉनसून के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर लोग मांस मछली नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है उसे हम लोग बंद कर देते हैं, वो चीज़ें हम नहीं खाते हैं। तो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें दालों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दालों को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए आप दाल हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो पूरी करते ही हैं, साथ में हमारा विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं। तो इसीलिए मॉनसून टाइम पे हमें दाल का चीला, बेसन का चीला या दाल बॉईल करके राइस के साथ किसी भी फॉर्म में आटे में डाल के आप किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। दालों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हर मौसम का अपना एक फल होता है, जैसे कि आपका गर्मियों में हमें मैंगो जो होता है वो बहुत ईज़िली मिलता है और अच्छा भी लगता है और सीज़न का फल ही अच्छा लगता है। जैसे-जैसे अब आम का सीज़न जा रहा है, हमें उसमें से टेस्ट भी नहीं आता, वो सीज़न का फ्रूट्स नहीं है, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाती है। इसी तरह अगर मैं मॉनसून की बात करूँ तो इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा चटपटा खाने का, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाने का बहुत मन करता है। पकोड़े या कुछ भी इस तरीके की डीप फ्राई चीज़ें जो होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। तो इस टाइम पे अगर हमें आपका मन ये चीज़ें खाने को करता है तो मार्केट का ऑयली फूड अवॉइड करें। घर का बना पकोड़े या जो भी भाजी वगैरह आप ले सकते हैं, क्योंकि जो हम घर में बनाते हैं उस ऑयल को दोबारा यूज़ नहीं करना है। एक ऑयल को एक ही बार डीप फ्राई के लिए यूज़ करें। मार्केट से जो चीज़ें हम लेते हैं वो उसी ऑयल को बार-बार यूज़ करते हैं, कहीं न कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इसीलिए हमें उस फैट को, उस ऑयल को अवॉइड करना है। सीज़न में अगर आपका मन करता है, 1 या 2 बार आप ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ऑयली फूड, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आप लिमिटेड अमाउंट में और घर का बना होममेड होना चाहिए, ताकि आप उस ऑयल को दोबारा यूज़ ना करें और प्रॉपर हाइजीन के साथ वो चीज़ें आपने बनानी हैं। उसके अलावा आप जो भी डीप फ्राई करने के लिए जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं या फिर राइस ब्रान ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन ऑयल में फ्राई करके बना सकते हैं, लेकिन वो भी सीज़न में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि इनमें सॉल्ट इस और आपका डीप फ्राई है, कहीं न कहीं हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम या जिनको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए भी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। इसीलिए कभी 1 बार, 2 बार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नहीं कि आप डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फ्रूट्स कौन से हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए मानसून के टाइम पे। मानसून के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स हमारा जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आपका मस्क मिलन, आपका वाटरमेलन, ये वाली फ्रूट्स जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। कुकुम्बर को अवॉइड करना चाहिए। जो फल हम मॉनसून के टाइम पे, बरसात के टाइम पे खा सकते हैं, वो हैं आपके एप्पल है, पियर है, पपाया है, बनाना है। ये वाले फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इन फलों को अपनी डाइट में डेली इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा अगर अभी मैंगो भी मार्केट में है, आपको लगता है कि हाँ, ये इस सीज़न का ही है, तो उस टाइम पे आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे दशहरी आम का सीज़न चला गया है, तो वो चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फर्मेंटेड फूड की, फर्मेंटेड फूड जो होता है, हमेशा मैं आपको उसके हेल्थ बेनिफिट बताती हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आपका इडली, डोसा, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, हर चीज़ अच्छा होता है। लेकिन मॉनसून के टाइम पे हमें फर्मेंटेड फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो हमारा जो उसके हेल्थ बेनिफिट है, जो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी डाइट के लिए अच्छा है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट उसके आ जाते हैं। तो इसीलिए मॉनसून के टाइम पे इस 1 मंथ के लिए फर्मेंटेड फूड, आपका इडली, डोसा, ढोकला, ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा-सा हमें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप ये चीज़ें लेते भी हैं तो होममेड, घर का बना, और वो भी ज़्यादा फर्मेंटेड ना करें उन चीज़ों को। अ, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मार्केट का जो है, बाज़ार का, किसी रेस्टोरेंट का, वो चीज़ अवॉइड कीजिएगा। मार्केट का, क्योंकि जो भी फर्मेंटेड फूड हम मार्केट से लेते हैं उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इस सीज़न में पनपते हैं, तो इसलिए वो कहीं न कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्प्राउट्स की, यानी कि अंकुरित दालें, स्प्राउट्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, फाइबर का रिच सोर्स है, प्रोटीन अच्छा होता है और उसको हम हमेशा अपने सैलेड में, डाइट में इंक्लूड करें बोलते हैं, लेकिन मॉनसून के टाइम पे स्प्राउट्स को अवॉइड करना चाहिए। स्प्राउटेड दालें जो होती हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इसकी जगह अगर आपको स्प्राउट्स खाना अच्छा लगता है, ब्लैक चना कि हाँ, मैं प्रोटीन कहाँ से लूँ, मैं क्या चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ, फाइबर कहाँ से लें, तो आप बॉइल्ड फॉर्म में चने, राजमा जो भी आपको खाने हैं, उनको बॉइल्ड करके बॉइल्ड फॉर्म में आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन स्प्राउट्स करके यानी कि अंकुरित दालों को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है, मॉनसून की टाइम की बात करें अगर हम तो। सॉल्ट की मैं बात करूँ कि इस टाइम पे हमारा मन नमकीन चीज़ें, चटपटी चीज़ें जैसे ज़्यादा खाने का मन करता है, नमकीन की तरफ या कुछ बाहर के जंक फूड की तरफ हम ज़्यादा उस तरफ को जाते हैं। तो सॉल्ट का इंटेक हमें ध्यान में रख के कोई भी अपनी चीज़ डाइट इंक्लूड करनी है। टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑलरेडी हमारी डाइट में सॉल्ट इंटेक बढ़ गया है कि हम स्पाइसी या कुछ इस तरीके का फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो भी आप खाना खा रहे हैं सैलेड में, फ्रूट्स में, उसमें टेबल सॉल्ट इंक्लूड नहीं करना है। जितना खाना बनते हुए सॉल्ट आपने यूज़ किया है बस वो ही करना है, ऊपर से टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ, बात करेंगे हम वाटर इनटेक की। बारिश के टाइम पे जैसे ही वेदर में चेंजेस आते हैं, हमारा पानी का इनटेक कम हो जाता है। गर्मियों में जहाँ हमें थोड़ी-थोड़ी देर में प्यास लगती है, हम पानी ज़्यादा पीते हैं, उसी टाइम पे अब ये मॉनसून टाइम पे हमारा वाटर इनटेक अपने आप ही कम हो जाता है। ये आप लोग खुद अपने आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप पूरे दिन भर में आज आपने कितना पानी पिया है। मॉर्निंग टू इवनिंग हम ध्यान से अगर हम सोचें, शाम के टाइम पे आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें आप मेंशन कीजिए कि आपने पूरे दिन भर में कितना वाटर आज पिया है या कितना आपने ऑयली फूड लिया है, तो आपको पता लगेगा कि मैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से मेरा वाटर इंटेक बहुत कम हो रहा है या फिर मैं ऑयली फूड बहुत ज़्यादा मेरी डाइट में इंक्लूड हो रहा है। तो इसलिए अपना वाटर इंटेक को कैलकुलेट कीजिए, कितना पानी आपने लिया। पानी चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, तीनों ही सीज़न में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उतना पानी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। वो पानी आप कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, आप नॉर्मल पानी या आप डिटॉक्स वाटर किसी भी फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो पानी का इंटेक जो है वो हमें अपना प्रॉपर रखना चाहिए। उसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव वाले जितने भी फूड होते हैं, आजकल रेडी टू ईट फूड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मकीन्स वगैरह हम लाते हैं, उनको फ्राई करके वो यूज़ करते हैं, या ये सारी चीज़ें मॉनसून टाइम पे हमें अवॉइड करनी चाहिए। मॉनसून टाइम पे हमें रेडी टू ईट या जितना भी प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, वो अपनी डाइट में हमें इंक्लूड नहीं करना है। ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो क्योंकि कहीं न कहीं ये जितने भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं, ये हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे बैक्टीरिया के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनसे, तो इसीलिए ये अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आप कि जूसेस जैसे आपका आंवला, आंवला मॉनसून टाइम पे बहुत अच्छा है, आंवले का जूस अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि आंवला खट्टा है और वेदर चेंज हो रहा है, हम खट्टी चीज़ें खाएँगे तो कहीं न कहीं हमारा गला खराब होगा या कोल्ड कफ होगा, इस तरीके से प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है। विटामिन सी रिच फूड अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रॉन्ग होती है। कोल्ड कफ जैसी छोटी जो भी प्रॉब्लम अगर हमें हुई है, तो हम उससे जल्दी रिकवर कर सकते हैं, मेडिसिन के बिना भी रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए अपनी डाइट में एलोवेरा, आंवला, आपका लेमन वाटर, इन सब चीज़ों का जूस को इंक्लूड करें और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आंवले का जूस, बीट रूट का जूस, लेमन जूस, ये हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब फिज़िकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, इस सीज़न में, इस वेदर में थोड़ा-सा हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा-सा आलसी हो जाती है। हमारा इतना फिज़िकल एक्टिविटी या इतना कुछ वर्कआउट करने का मन नहीं करता। थोड़ा-सा मौसम अच्छा होता है तो नींद आना या आलस आना, ये सारी चीज़ें हमें फ़ील होने लगती हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
अपना अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए घर में ही कम से कम 35 या 40 मिनट्स की वॉक करें, योगा करें, यूट्यूब में योगा लगा के आप योगा कर सकते हैं, या कुछ भी बैठे-बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकली एक्टिव नहीं हम रहेंगे और हम डाइट में इतनी सारी ऑयली चीज़ें या ये चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा मेटाबॉलिज़्म और स्लो होगा और हमें कोई भी डिज़ीज़ बहुत जल्दी पकड़ेगी। तो इसीलिए अपना मेटाबॉलिज़्म को स्ट्रॉन्ग करना, उसको हाई करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे हमें अपना डाइट जो है, वो थोड़ी-सी कम कर देनी चाहिए। नॉर्मली अगर हम 3 चपाती खाते हैं, तो अपने आप ही हमें 2 चपाती कर देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हम फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं कर पाते हैं, जितना हम नॉर्मली बात करें अगर हम कि विंटर्स में या समर सीज़न में करते हैं, मॉनसून सीज़न में हम उतना नहीं कर पाते हैं। और इस टाइम पे हमारे खाने के लिए उतने ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल भी नहीं होती हैं, क्योंकि वेदर चेंजेस के कारण हरी सब्जियाँ हम नहीं खा सकते, तो इसीलिए हमें अपना डाइट थोड़ा-सा कम कर देना चाहिए। उसकी जगह हमें आप दाल ज़्यादा कर सकते हैं, 2 3 चपाती की जगह आपने 2 चपाती की, आप अपना दाल बढ़ाइए। आपने सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं। स्प्राउट्स की जगह मैंने बोला बॉइल्ड फॉर्म में आप साबुत दालें जो हैं, चने, उनको इंक्लूड कर सकते हैं। कॉर्न इंक्लूड कर सकते हैं। मक्का खाने का ये बहुत अच्छा टाइम है और इस टाइम पे भुना हुआ कॉर्न जो होता है आपका, वो हमें अच्छा भी लगता है, इज़िली मार्केट में मिलता भी है, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं, कॉर्न सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स की जैसे मैंने आपको बताया, सीज़नल फ्रूट्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल अगर जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो कहीं न कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए हमें अपनी डाइट में पपाया, बनाना, आपका पपाया, बनाना तो ख़ैर हर सीज़न में मिलता है, वो इंक्लूड कर सकते हैं। पीयर इंक्लूड कर सकते हैं, नाशपाती, बबूगोसा जो होता है, वो इंक्लूड कर सकते हैं हम। और ये वाले फ्रूट्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो मार्केट का मिल्क शेक या बनाना शेक, कोई भी शेक हम मार्केट से पीते हैं या मसाला छाछ या कुछ इस तरीके से, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। होममेड घर का बना मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन मार्केट का अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी जो मिल्क से बनी चीज़ें होती हैं, दूध से बनी चीज़ें होती हैं, वो जल्दी खराब होने के चांस होते हैं। तो मार्केट में वो कितने टाइम से है, 2 दिन से 3 दिन से हमें नहीं पता। अगर हम कोई भी शेक या कोई फ्लेवर्ड लस्सी या कुछ इस तरीके से पी रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, तो इसीलिए हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। जो भी डेयरी प्रोडक्ट हमें इंक्लूड करना है, डेयरी प्रोडक्ट में कोई मनाही नहीं है, मॉनसून टाइम पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो होममेड घर का बना होना चाहिए। घर का दूध का आप कोई शेक बनाइए, मैंगो शेक, बनाना से शेक या लस्सी बनाइए या बटर मिल्क, कुछ भी लेना है, लेकिन होममेड होना चाहिए। मार्केट का आपको जो रेडी टू ईट आते हैं या जो भी मिल्क शेक वगैरह हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अ, अगर मैं बात करूँ कि रेनी सीज़न में क्या-क्या हेल्दी चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे कि सूप इस टाइम पे पीना हमारे लिए बहुत अच्छा है। होममेड घर का बना घी या टमाटर का सूप ले सकते हैं, कॉर्न सूप आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी सूप जो आपको पसंद है, मशरूम का सूप, कोई भी सूप आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स मैंने बताया, फ्रूट्स को अपने मिड मील में या अपने इवनिंग टाइम में अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे अ, हमें अपने जो भी हमारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उसे पूरी करने के लिए, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीजनल फ्रूट्स ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके अलावा हम ड्राई फ्रूट्स की मैं बात करूँ, आलमंड्स, वॉलनट्स वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म में रख सकते हैं। इवनिंग टी के साथ जब कभी मन करता है कुछ स्नैक्स लेने का, तो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चाय की मैं बात करूँ, तो इस सीज़न में चाय पीने का हमारा बहुत मन करता है।
और कोई भी अगर जिनको चाय बहुत पसंद है, अगर टी पूछा जाए तो कभी मना नहीं करते, चाहे वो दिन में 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, और उतनी बार हम चाय पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा टी, ज़्यादा कैफ़ीन अगर हम इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बहुत सारी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड हो सकती हैं। तो टी को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि आपका चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, आपको मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, आपको चाय इंक्लूड करनी है, तो आप हर्बल टी इंक्लूड कर सकते हैं। हर्बल टी में आप ग्रीन टी इंक्लूड कर सकते हैं 1 टाइम, 2 टाइम आप नॉर्मल टी आपने जो लिया, 1 टाइम आप हर्बल टी में आपने अजवाइन, मेथी, आपने अदरक, तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से बॉयल करके छान के वो टी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं हमारा जो भी हमें वेदर चेंज होने की वजह से गले में दर्द होना, कफ होना, कोल्ड होना, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो उन सब में भी हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। टर्मरिक टी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अ, पानी में हल्दी डाल के बॉयल करके अच्छे से उसकी चाय इंक्लूड कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। वो हमारा हल्दी भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट रिच है, और कहीं न कहीं वो हमें जो भी ये बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन से बचाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो हल्दी वाला दूध, हल्दी वाली चाय, अपने खाने में हल्दी को इंक्लूड कर सकते हैं। पानी का मैंने आपको बताया, वाटर इंटेक अपना कम नहीं करना है। अपना जो भी फ्लूइड इंटेक हम कर रहे हैं, उसको प्रॉपर आपने देखना है कि कितना पानी दिन भर में मैंने पिया है, उसे ऑब्जर्व करना है। पानी का इंटेक अपना बढ़ा के रखना है। प्लेन वाटर नहीं पिया जाता, डिटॉक्स वाटर है, कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर है आपका। ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वाटर का इंटेक अपना बढ़ा के रखें। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक डाइट प्लान भी शेयर करना चाहूँगी कि मॉनसून में हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए। जब भी हम मॉनसून का टाइम होता है, हर किसी को थोड़ा-सा कोल्ड, कफ इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे और डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। कई बार हमें स्टमक पेन होना, कई बार कॉन्स्टिपेशन होना, ज़्यादातर लूज़ मोशन होना, ये सारी प्रॉब्लम इस टाइम पे होती है। तो थोड़ा-सा डाइट अपना जो है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील का पैटर्न तो आपने रखना ही है, लेकिन डाइट में आप क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे अगर, तो दिन की शुरुआत हमेशा अ, अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, इस तरीके के कुछ हर्बल टी से आपने स्टार्ट करना है अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि अ, इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डाइजेशन जो है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हम प्रॉपर जो हमारा स्टमक है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। तो अगर हम अपने दिन की शुरुआत अजवाइन के पानी से करेंगे, तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। जो भी हम दिन भर में खा रहे हैं, वो अच्छे से हमारा जो टमी है वो डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इसीलिए अपने दिन की शुरुआत जो है अ, अजवाइन वाटर से कर सकते हैं। अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, मेथी दाने, जो डायबिटिक हैं, मेथी दाने का पानी ले सकते हैं। हमेशा अपने दिन की शुरुआत इन चीज़ों से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका मेटाबॉलिज़्म जो है वो थोड़ा-सा हाई होगा, मेटाबॉलिज़्म बढ़ेगा हमारा। उसके अलावा हम ब्रेकफ़ास्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इस टाइम पे गेहूँ की चपाती तीनों टाइम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गेहूँ जो है वो डाइजेशन में थोड़ा-सा लंबा टाइम लेता है। अ, डाइजेशन में थोड़ा लंबा टाइम लेता है, तो उसकी जगह अगर हम 2 मील में अपना गेहूँ की जगह एक टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट में आप पोहा ले सकते हैं, ओट्स इंक्लूड कर सकते हैं आप, बेसन का चीला, मूँग दाल का चीला इंक्लूड कर सकते हैं आप, व्हीट फ्लेक्स इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मील में कोई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, चने का सत्तू इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप स्प्राउट्स नहीं लेना है हमें, और ज़्यादातर लोग दही वाली चीज़ें भी अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए हम इस टाइम पे आपका सूप हो गया, चने का सत्तू हो गया आपका, फ्रूट्स हो गया आपका, बनाना है, एप्पल है, पियर है आपका, पपाया है, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं मिड मील में। सूप बहुत अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे पीने के लिए, वेदर चेंज के टाइम की अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा लंच में हम नॉर्मल मल्टीग्रेन की चपाती ले सकते हैं, या अगर आप गेहूँ की चपाती भी ले रहे हैं लंच में, एक चपाती लिया, थोड़ा से राइस इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़े राइस ले लीजिए।
दाल, सब्जी, आपका सैलेड, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चने, राजमा, कुछ हैवी दालें इंक्लूड कर रहे हैं और आपको स्टमक से कुछ डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में लें या थोड़ा अवॉइड करें। जिन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस समय वॉक नहीं कर पा रहे हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग थोड़ा-सा अवॉइड करें। वो लाइट दालें आपकी अरहर की, मटर की, मूँग की, जितनी भी हल्की दालें हैं, वो सारी दालें हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका लंच और डिनर के बीच में हमारा इवनिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो शाम को चाय के साथ हेल्दी स्नैक्स हमेशा इंक्लूड करें। अगर हमारा टमी फुल होगा और हमने अपनी चाय के साथ मखाने, आपका रोस्टेड चना, आपका बॉइल्ड चना या फिर आपने पीनट्स हो गए आपके, ये चीज़ें आपने इंक्लूड की हैं, तो आपका जब हमारा टमी फुल होगा तो हमारा ध्यान पकोड़े, समोसे, कचौड़ी की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमें तभी माइंड में आती है जब हमें भूख लगी होती है ज़्यादा, या उस समय कि हमारे मील गैप बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ें खाने का मन करता है। अगर हमारा मील गैप इतना नहीं है, तो हमें उतनी चीज़ें खाने का, या अगर हम खाएँगे भी तो लिमिटेड अमाउंट में ही अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद डिनर की मैं बात करूँ, तो मॉनसून के टाइम पे डिनर हमेशा हमारा लाइट रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही डिनर लाइट रखना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे स्पेशली हमें अपना डिनर लाइट रखना चाहिए। वेजिटेबल दलिया, मिल्क दलिया, मूँग की दाल की खिचड़ी हो गई आपकी। अगर आप चपाती लेते भी हैं, जैसे मैंने बताया आपको, रागी की, आप कुट्टू की, आप बाजरे की, ये चपातियों को इंक्लूड कर सकते हैं। गेहूँ की चपाती रात को थोड़ा-सा अवॉइड करें। बेसन की चपाती को इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद डिनर के बाद हमारा बेड टाइम मिल्क बहुत ज़रूरी है। बेड टाइम मिल्क के लिए उसमें आप टर्मरिक डाल के, हल्दी डाल के आप इंक्लूड कर सकते हैं। अरे हल्दी यार डाल देखो तो सही वो। टर्मरिक मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं कुछ हेल्दी स्नैक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम पे हम क्या हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। आप कॉर्न अपनी डाइट में बॉइल्ड फॉर्म में कॉर्न इंक्लूड कर सकते हैं, कॉर्न सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं, कॉर्न चाट इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें भी अच्छे से आपने लेमन जूस, चाट मसाला, सब कुछ डाल के अच्छे से खाएँगे तो आपको वो भी टेस्टी लगेगा। उसके अलावा आप रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सूप इंक्लूड कर सकते हैं। इवनिंग में अगर आपको कुछ खाने का मन, तो पोहा इंक्लूड कर सकते हैं। सूजी का उपमा हम इंक्लूड कर सकते हैं। सैंडविच अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो होममेड ही होना चाहिए। कई बार हम मार्केट जाते हैं, हमें कुछ हेल्दी ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो हम सैंडविच ले लेते हैं मार्केट से खाने के लिए। लेकिन मॉनसून के टाइम पे बाहर का सैंडविच हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी वेजिटेबल उसमें लगी हैं, वो काफ़ी टाइम की कटी हुई होती हैं, और हमें वो चीज़ें, कटा हुआ फल, सब्ज़ी मार्केट से नहीं खाना है मॉनसून के टाइम पे, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ों का। तो इसीलिए सैंडविच अगर आप खाते हैं तो होममेड घर का बना ले सकते हैं, लेकिन मार्केट का अवॉइड करना है। तो ये एक डाइट प्लान और मॉनसून डाइट के बारे में मैंने आपको बताया। अजवाइन वाटर के बारे में आप पूछ रहे हैं कि अजवाइन वाटर कैसे बनाना है। नॉर्मली चाहे तो आप रात को 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच अजवाइन का सोख करके रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि रात को आपको याद नहीं रहता, तो मॉर्निंग में भी आप आधा चम्मच अजवाइन को 1 ग्लास पानी में डाल के उसे बॉयल करेंगे। जैसे हम टी को बॉयल करते हैं, 5 टू 7 मिनट्स तक आपने उसे बॉयल करना है। उसके बाद उसे छान के, आप जैसे हम चाय लेते हैं सिप करके, वैसे ही आप इस अजवाइन वाटर या जीरा वाटर को इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और मॉनसून के टाइम पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनसे भी हमें बचाता है। तो इस तरीके से हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रेड आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन ब्रेड जब भी आप लेंगे तो मल्टीग्रेन ब्रेड ही यूज़ करें।
तो ज़्यादा अच्छा है। मैदे वाली व्हाइट ब्रेड या जो भी आटा ब्रेड भी मार्केट में मिलती है, तो वो बोलते आटा ब्रेड है बट वो प्योर आटा ब्रेड नहीं होती है। तो इसीलिए मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड भी आप डेली मॉनसून के टाइम पे अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। हफ्ते में 1 बार आप ब्रेड इंक्लूड कर सकते हैं, या आप पोहा, उपमा, दलिया ये ऑप्शन रखिए थोड़ा-सा हेल्दी इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे हमें अच्छे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो ये चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेड ऑप्शनल रख सकते हैं, लेकिन मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करनी है। रोटी आप लोग खा सकते हैं, रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अगर हम गेहूँ की चपाती हम ले रहे हैं, तो गेहूँ की चपाती जो है वो डाइजेशन में टाइम लगाती है प्रॉपर, और इस टाइम पे मॉनसून के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इस टाइम पे हमें अपना चपाती को दिन में 1 ही मील में इंक्लूड करें तो ज़्यादा बेटर है। 2 मील में हम जैसे कभी राइस ले लिया, कभी आपने ओट्स से बना कुछ खा लिया, ओट्स की चपाती ले ली, इस तरीके से। तो रोटी हम ब्रेकफ़ास्ट में भी ले सकते हैं, रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन या तो आप उसकी फ़ॉर्म चेंज करके, जैसे कि आप मल्टीग्रेन आटे की चपाती लें, उसमें थोड़ा-सा बेसन भी मिक्स कर सकते हैं नॉर्मल गेहूँ के आटे में, या स्टफ़ चपाती बना के उसमें खूब सारी वेजिटेबल या पनीर स्टफ़ करके उसकी चपाती बना के भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, और जो हम तीनों टाइम गेहूँ की रोटी मॉनसून के टाइम पे मत लीजिए। ये रोटी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटिक जो है वो पीयर इंक्लूड कर सकते हैं, नाशपाती, बब्बू गोसा जो होता है वो आप ले सकते हैं, और पपाया इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग अपनी डाइट में, जो भी डायबिटिक है। जामुन इंक्लूड कर सकते हैं, ये वाले फ्रूट्स डायबिटिक ले सकते हैं। जो फ्रूट्स आपने अवॉइड करने हैं सिर्फ बनाना, मैंगो, लीची, चीकू, ये वाले फ्रूट्स डायबिटिक जितने हैं वो लोग अवॉइड करें। इसके अलावा बाकी आप पियर का सीजन चल रहा है इस टाइम पे, वो बहुत अच्छा फ्रूट्स है, वो इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर आप इस टाइम पे, तो इस वेदर में हमें यूज़ नहीं करनी है। इस टाइम पे जो भी आप यूज़ करेंगे, जैसे आपका हरी सब्जियां अवॉइड करनी है, आपका घिया, तोरी, टिंडा, ये वाली सब्जियां इंक्लूड करनी है, कॉलीफ्लावर, कैबेज भी अवॉइड करनी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में भी हमारा कीड़े या कुछ इस तरीके के चांसेस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, तो इसीलिए इस वेदर में अवॉइड करें। हरी सब्जियां जब भी आप घर में यूज़ करते हैं, जब इस मॉनसून के बाद जब ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सीजन आएगा, तो अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर उन सब्जियों को नमक के पानी में डिप करके रखें, सॉल्ट में डिप करके रखें, उसको 10 से 15 मिनट, उसके बाद अच्छे से वॉश करके उसके बाद काट के आप यूज़ करें। कभी भी सब्जियों को काटने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, और फिर आप उसको बॉयल करके या किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इस सीजन में हरी सब्जियाँ जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। ब्रेड आपका कोई भी होल व्हीट ब्रेड भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा जो मार्केट में आटा ब्रेड मिलती है ब्राउन कलर, उसमें सिर्फ वो कलर मिक्स करते हैं। अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो वो आटा ब्रेड नहीं होती। होल व्हीट ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अच्छे से देख के यूज़ करना है। सिर्फ उसका कलर चेंज अगर आपको लगता है कि ब्राउन, थोड़ा-सा लाइट ब्राउन, आजकल बहुत सारी ब्रेडों का इस तरीके से वो कर रहे हैं, बट वो मैदे वाली ही है, तो वो आपने अवॉइड करनी है। अगर ब्रेड आप यूज़ करते भी हैं, हफ्ते में 1 बार यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। अ लंच में आप मल्टीग्रेन चपाती इंक्लूड कर सकते हैं। जो डायबिटिक हैं उनके लिए मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा है। मैंने जो आपको अभी बताया कि रागी, बाजरा, आपका ज्वार, आपका कुट्टू, ये सब चीज़ें आपने इस टाइम पे इस वेदर में अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो इस टाइम पे ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो आप मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीग्रेन आटे में आपका गेहूँ का पोर्शन कम हो गया। आपका ये सब चीज़ें आपका रागी, बाजरा या जो भी मल्टीग्रेन चीज़ें हैं, वो आपका ज़्यादा है। तो इसीलिए आपने इस टाइम पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। रश्मि जी, क्या हाँ जी, हाल है? मैम। रश्मि जी, क्या नाम, हम तो वैसे जीरा वाटर और अजवाइन वाटर तो मैं पीती रहती हूँ, लेकिन
बहुत गर्मी में बंद कर दिया था। मैंने क्या गौरव को बोला, मैंने कहा अनम्यूट करिए। पीना ठीक है इस मौसम में, जीरा वाटर वगैरह? सॉरी मैम, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं कह रही हूँ मैं रेगुलर विंटर से जीरा वाटर और अजवाइन वाटर पी रही थी। हाँ जी, बहुत गर्मी में बंद कर दिया, क्या अब शुरू करें फिर? आप दोबारा से शुरू कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि इस टाइम पे हमारा बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस या डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम पे हमें अजवाइन वाटर वगैरह अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं या जीरा वाटर, तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो गया है उसे थोड़ा सा हाई होने में हेल्प करता है। तो इसीलिए हमें इस टाइम पे यूज करना चाहिए। तो अपनी डाइट पे आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। गर्मियों में आपने बंद कर दिया था, वेदर चेंज हो रहा है इस टाइम पे, वैसे भी कोल्ड कफ से बचने के लिए या अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत अगर आपको लगता है कि आपको एलर्जी है, बहुत ज्यादा अजवाइन आपको नुकसान देता है, तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, आधा चम्मच या आधे से भी कम चम्मच आप अजवाइन को वाटर में बॉईल करके आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रश्मि जी, डिटॉक्स वाटर के बारे में बता दें तो। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं इस समय मॉनसून में? मॉनसून में डिटॉक्स वाटर, मॉनसून में आप मिंट का डिटॉक्स वाटर, चिया सीड्स का डिटॉक्स वाटर, लेमन का डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं। नॉर्मल पानी में आपने जो भी आपका पानी की बॉटल है नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें आप लेमन के पीसेस ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मिंट लीव ऐड कर सकते हैं। इन चीजों को तीनों को मिक्स कर जब आपने वाटर में डाला, उस पानी को आप 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसका पूरा फ्लेवर उस पानी में आ जाएगा इन तीनों चीजों का, वो पानी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे आपका कुकुम्बर हम इंक्लूड नहीं कर सकते, आपका वाटरमेलन हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कैरेट का आपका अभी सीजन इतना नहीं है, अगर आपको इजीली मार्केट मिल रहा है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो हमारा डिटॉक्स वाटर इस टाइम के लिए है वो है आपका चिया सीड्स, लेमन और मिंट का डिटॉक्स वाटर। चिया सीड्स का कैसे बनेगा? चिया सीड्स को आपने मैम 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 बॉटल पानी में आपने डालना है। उसमें 1 लेमन के पीस को लेमन का जूस नहीं डालना, प्रॉपर उसके 4 पीस करके उसमें ऐड करने हैं और साथ में मिंट की कुछ लीफ डालनी है। तो उसको आप उस पानी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। चिया सीड्स को कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ डायरेक्ट डालना है। वो अपने आप जब पानी में सोक होने के बाद वो थोड़ा सा अपने आप फूल जाएगा। फूल तो जाएंगे तो उनको भी ले लेना है ना, तो चिया सीड्स को भी पी लेना है। हाँ जी, हाँ जी, चिया सीड्स को पी लेना है, चिया सीड्स को भी पीना है। मिंट लीफ भी अगर मुंह में आती है तो अच्छा है, उससे तो माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है। हाँ, आपने कहा था कि ब्रेकफास्ट और लंच के हम एमटीआर का खा सकते हैं, एमटीआर के इडली वगैरह और रवा डोसा। मॉनसून सीजन पे कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला फूड नहीं खाना है। मॉनसून सीजन पे फर्मेंटेड फूड भी अवॉइड करने हैं हमें। आपने इडली डोसा में इस टाइम पे नहीं बोलूंगी, और खास तौर से एमटीआर या मार्केट का कोई भी है जो हम लेते हैं वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो फर्मेंटेड कितने टाइम से किया है, उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, क्योंकि बरसात में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए मार्केट का जो भी आप डोसा इडली कुछ भी ले रहे हैं वो आपने अवॉइड करना है। घर का बना तब भी अगर आपको बहुत ज्यादा मन करता है, क्योंकि जो साउथ के लोग हैं वो डोसा इडली इनके बिना नहीं रह सकते, तो वो घर का बना ज्यादा फर्मेंटेड नहीं करना, 1 दिन पुराना है तो वो यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का नहीं होना चाहिए। और दही भी नहीं खानी चाहिए क्या इस मौसम में? दही डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, क्योंकि कई लोगों को कर्ड से या छाछ से एलर्जी हो जाती है। वेदर चेंज हो रहा है तो उनका गला खराब होना, गले में खराश होना या कोल्ड कफ होना, इस तरीके से अगर आपको लगता है कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आपने कर्ड अवॉइड करनी है। नहीं तो फ्रेश कर्ड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात के टाइम पे कर्ड अवॉइड करें, लंच में आप कर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेश होना चाहिए, सुबह का जमाया दिन तक ले रहे हैं। मार्केट का दही या क्योंकि वो उसमें डेट लिखी होती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन पुराना है, वो कार्ड हमें यूज नहीं करना है इस टाइम पे। रश्मि जी, आपने कहा कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो स्नैकिंग थोड़ी करते हैं उसमें स्प्राउट्स नहीं लेने,
तो वेदर ऑल टुगेदर ही नहीं लेने की, उस टाइम नहीं लेने बिफोर नहीं लंच? नहीं, मॉनसून ये डाइट आज का टॉपिक ही हमारा मॉनसून डाइट के ऊपर है। तो मॉनसून सीजन में हमें स्प्राउट्स नहीं लेने। जैसे ही मॉनसून सीजन जाएगा सितंबर के बाद आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी है, बहुत सारे न्यूट्रिशन उसमें होते हैं, तो उस टाइम पे हम ले सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे हमें स्प्राउट्स अवॉइड करने हैं। स्प्राउट्स की जगह मैंने आपको बोला बॉइल्ड करके चने, राजमा, छोले जो आपको खाने हैं वो बॉइल्ड फॉर्म में उसका सैलेड बना के ले सकते हैं, लेकिन स्प्राउट्स फॉर्म में नहीं लेना है हमें, सिर्फ मॉनसून सीजन। इफ यू डोंट माइंड कि मैं राजस्थान से हूँ और हमारे यहाँ तो इन्हीं 2 महीनों में स्प्राउट्स खाने का रिवाज है। इतने स्प्राउट्स खाते हैं कि वो इसलिए खाते होंगे क्योंकि इस टाइम पे स्प्राउट्स बहुत जल्दी हो जाता है। आपने आज किया, कल तक वो इतने लंबे लंबे स्प्राउट्स उसमें आ जाते हैं। बेसिकली यही होता है। लेकिन इस सीजन I too tried 2 days back and मतलब स्प्राउट हो गए। अच्छा, ये भी एक चला गया मेरा पॉइंट। हाँ जी, तो वो अवॉइड करना है। और जीरा वाटर गर्मियों में भी हम पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा कम करनी है। अगर हम नॉर्मली विंटर्स के टाइम पे 1 चम्मच जीरा यूज कर रहे हैं, तो गर्मियों के टाइम पे हम आधा चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में सोक करके हम वो इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Which is better? What do you think? अजवाइन और जीरा कौन सा पानी लें हम? मॉनसून के टाइम पे अजवाइन का पानी अच्छा है। और लेकिन कोई भी चीज अगर हम, जैसे अगर आप नॉर्मल पूछ रहे हैं कि कब तक हम ले सकते हैं, तो एक ही चीज की हमें हैबिट नहीं होनी चाहिए। अभी आपने 15 डेज अजवाइन का पानी लिया, 15 डेज बाद आप जीरा वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा गैप करके आपने यूज करना है, क्योंकि एक ही चीज अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो हमारी बॉडी में मतलब उसकी यूज टू हो जाती है, तो उतने नहीं मिलते। तो इसलिए थोड़ा सा गैप देके 15 डेज आपने अजवाइन वाटर कर लिया, 15 डेज आपने जीरा वाटर कर लिया, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, फर्मेंटेड चीजें बड़ी खाती है, लेकिन खट्टी चीजें खा तो सकते हैं, अचार वगैरह तो खा सकते हैं। मेथी का सॉरी पानी, मैम, अचार एक सेकंड मैम, सॉरी। मेथी का पानी हाँ जी, पीना ठीक होता है क्या इसमें? मेथी का पानी अगर आप हाँ, मेथी का पानी अच्छा होता है अगर आप डायबिटिक हैं। और हाँ, और मॉनसून टाइम पे आप मेथी वाटर भी ले रहे हैं तो आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा। तो मेथी को 1 चम्मच मेथी को आप पानी में सोख करके सुबह बॉईल करके ले सकते हैं। और अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है मॉनसून टाइम पे और डायबिटिक भी आप हैं, तो मेथी और अजवाइन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके पानी में सोख करके आप उसको भी बॉईल करके ले सकते हैं। मेथी पानी इस टाइम पे लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर भी कंट्रोल करेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट है डायबिटिक के लिए। और नॉर्मल है तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेथी पानी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने दिन की शुरुआत जो है एक हर्बल टी यानी कि अजवाइन, मेथी या आपका जीरा, इनसे स्टार्ट करनी है। सुबह उठते ही नॉर्मल टी की जगह आप इससे दिन की शुरुआत करें। उसके आपको नॉर्मल टी पीने के, हम इंडियन हैं, हम नॉर्मल टी के बिना नहीं रह सकते। तो 10-15 मिनट्स बाद आपको मन करता है तो आप नॉर्मल टी भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने दिन की शुरुआत इन चीजों से करें। Any other questions, anyone? रश्मि जी, I have a question. हाँ जी, आपने बीच में लिखा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स थायराइड को भी अफेक्ट करते हैं, तो डेयरी थोड़ी प्रोडक्ट्स, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स आपका जो मैंने बताया, बाहर मार्केट से हम मिल्क शेक पी रहे हैं, हम मार्केट की फ्लेवर्ड जो लस्सी, कर्ड वगैरह जो आती है वो यूज कर रहे हैं। इस मॉनसून टाइम पे वो इफेक्ट करती है हमारे थायराइड को, या फिर अगर हमारा जो भी डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत जल्दी खराब होते हैं। नॉर्मली अगर सुबह का दूध हम बाहर रख दें तो शाम तक वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए मॉनसून टाइम पे बाहर का डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। होममेड घर का बना आप बनाना शेक, मैंगो शेक, लस्सी कुछ भी पिए, आपके थायराइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाहर का प्रिजर्वेटिव वाला या जो भी टेट्रा पैकिंग वाले जो आते हैं मार्केट में वो हम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमारी अगर जो भी डिजीज है, कुछ भी हमें प्रॉब्लम है, हमारा थायराइड है, डायबिटीज है, उस पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो खराब है क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं। तो मॉनसून के टाइम पे हमें वो चीजें अवॉइड करनी है। थैंक यू। रश्मि जी, बीटरूट से डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं?
बीट रूट से बना सकते हैं सर, बीट रूट बहुत अच्छा है। सॉरी मैं बीट रूट को इंक्लूड करना भूल गई। और मॉनसून के टाइम पे जैसे इस सीजन में सैलेड के लिए हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुकुम्बर हमें इंक्लूड करना नहीं है, स्प्राउट्स हमें इंक्लूड करना नहीं है। अगर मैं कैरेट की बात करूँ वो अभी सीजन इतना आया नहीं है, तो बीट रूट बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीट रूट का डिटॉक्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बीट रूट का जूस, जैसे मैंने आंवला का बताया था कि वेजिटेबल जूस मिड मील में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बीट रूट, मिंट, आपका आंवला, ये सब चीजें उसका वेजिटेबल जूस बना के आप इंक्लूड कर सकते हैं, सूप में इंक्लूड कर सकते हैं। बीट रूट बहुत अच्छा है, मानसून सीजन में बहुत अच्छा है, तो बीट एग्स रूट खा भी सकते अपनी हैं, डाइट में इंक्लूड करना है। ब्रेकफास्ट में एग्स खा सकते हैं डेली? एग, हाँ, एग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सी फूड्स वगैरह अभी मानसून टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए। एग इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग भी अगर हम ब्रेकफास्ट में मानसून टाइम पे इंक्लूड करें तो बॉइल्ड फॉर्म में ही इंक्लूड करें। ऑमलेट, हाफ फ्राई की जगह आप बॉइल्ड फॉर्म में आप बॉइल्ड एग इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और रश्मि जी पनीर के बारे में बताइए। पनीर जैसे पनीर हम पनीर खा लेते हैं। मैम आप पनीर, होममेड पनीर जो है वो यूज कर सकते हैं। मार्केट का भी अगर आप लेते हैं तो प्लीज देख के लीजिए। अमूल का ही लेते हैं, ज्यादातर पैक्ड लेते हैं, ओपन वाला नहीं लेते। लेकिन इस टाइम पे बाहर का जो अमूल का या जो भी आपके मदर डेयरी का जो भी पनीर आता है वो डेट देख के लीजिएगा, बहुत ज्यादा हाँ। पुराना ना हो। एक दिन का फर्क हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और कोशिश करें अगर होममेड पनीर बना सकते हैं तो घर का पनीर ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और अगर आप मार्केट का पनीर खाते भी हैं तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे डेली नहीं इंक्लूड करना चाहिए, हफ्ते में एक बार आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि क्या चीज मार्केट की कैसे हमें हार्मफुल इफेक्ट करे तो उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा बाहर की चीजें इस टाइम पे हमें अवॉइड करनी है। उस पनीर को सेल्फ लाइफ बनाने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, उसकी सेल्फ हाँ लाइफ जी, बढ़ जाती है। इसीलिए प्रिजर्वेटिव वाला फूड मैंने अभी मॉनसून टाइम पे मना किया है। मॉनसून टाइम पे हमें प्रिजर्वेटिव वाला फूड अवॉइड करना है। तो थैंक यू सो मच। Right. Thank you so much, Rashmi. This was indeed a very, very informative session. And बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे हमें बताई हैं, जैसे कॉर्न हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फर्मेंटेड फूड्स नहीं चाहिए। फिश वगैरह के बारे में तो हम सबको खैर मालूम था, मतलब जैसे जनरली दिस इज़ वन थिंग विच इज़ फॉलोड बाय एवरीवन। बट जैसे आपने कहा कि सिट्रिक फूड्स जो इम्यूनिटी बिल्डिंग में करते हैं हेल्प बहुत ज़्यादा, एंड इस टाइम पे और भी खाने चाहिए। सो बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं, दिस अजवाइन वाटर, मेथी वाटर एंड दैट हर्बल टी एंड ऑल व्हिच कीप्स अस मोर हेल्दी. So definitely a very, very insightful session. And obviously as we are moving towards a very fast and busy schedules and health कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है. So of course a healthy diet would surely be a game changer for all of us here. In fact कहीं पे I have read somewhere that every morning's dew is a fresh breath of a new beginning, and every new healthy choice is a step towards a more healthy lifestyle. So चलिए आपके बताने से हम एक healthy lifestyle की तरफ बढ़ेंगे. And thank you so much for sharing all this with us. Thank you, ma'am. And thank you so much everyone for joining in. And just a reminder for everyone that the Elder Hour program has been shifted to the 5 p.m. slot, and the Zoom ID shared is the webinar email, Zoom ID, which we have to use at the 5 p.m. show. The rest of the time we have a more TV IDs which we are running. So morning and afternoon, please use the Mo TV IDs, and in the evening at 5 p.m. till 21st of August, we will be using the webinar ID. So thank you so much everyone for joining in, and tomorrow we will see you at 8 p.m. for a physiotherapy session, and 12 we will have a practice session, and in the evening we will meet you at 5 o'clock for our Elder Hour and our Elders First Festival. So till then, be healthy, eat healthy, and think healthy. So thank you so much, Rashmi, and thank you so much everyone. Thank you, Rashmi. Thank you, Ritu. रश्मि एक पालक का बता दो प्लीज, पालक खानी चाहिए बरसातों में? पालक नहीं खानी है मैम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अवॉइड करनी है इस सीजन में. यही बात मुझे ये डाउट था. तो ठीक, थैंक यू. Thank you so much everyone, and see you all tomorrow.
Thank you.